Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start our class. Today our topic is RC phase shift oscillator. Here is a circuit diagram for a RC phase shift oscillator, and you can see R and C combinations, three different combinations for the R and C. RC, RC, and RC. So that's why it is called as RC oscillator and phase shift because this oscillator causes 180-degree phase shift for the input signal. So that's why it is called as RC phase shift oscillator. Okay, the active element is a transistor connected in common emitter configuration. As you can see, it's a common emitter configuration. This is the base emitter and collector. Okay, so this is common with this. Okay, it means these are connected. So we have a common emitter configuration. Okay, and it's a property of the common emitter configuration that it provides a 180-degree phase shift between input and output signal. The common emitter configuration है ट्रांजिस्टर की, वो आपको पता है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट काज पता है, ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ कि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर 180 डिग्री फेज शिफ्ट काज नहीं करते, मगर कॉमन मीटर की प्रॉपर्टी है कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट काज करता है. ठीक है. So DC operating point, that is the Q point, is achieved through a voltage divider RC, RE, VCC and CE, where C is actually the emitter bypass capacitor. This is a CE. Okay, a bypass capacitor. You may study these type of capacitors, the bypass capacitor and the bridging capacitor and the bridging capacitor. Okay. So addition 180-degree phase shift by the feedback network. Okay, we have two type of the 180-degree phase shifts. Okay, 180-degree phase shift. One type of 180-degree phase shift is because of the common emitter configuration, and the second is due to the feedback network. Okay, if we have a transistor or if we have an oscillator with common base configuration, then we will have only one type of phase shift, that would be because of the feedback network. But now in this case we have two type of the 180 degree phase shift, so that's why we can say that the, the input and output both will be in phase, because uh, twice a 180-degree phase shift means 360-degree phase shift, and 360-degree phase shift is equal to 0 degree phase shift. Okay, so 0 degree phase shift means in phase, 180-degree phase shift means out of phase, and 0 degree phase shift means in phase. Okay, so additional 180-degree phase shift because of the feedback network. Okay, an additional 180-degree phase shift is provided by the three sections of the RC network, each giving 60-degree phase shift. Okay, 180 degree over 3, because we have three RC networks. So each RC network provides a 60-degree phase shift. Okay. Last RC section contains a resistance R dash is equal to R minus HIE, as this resistance is connected to the base of the transistor. R dash resistance is connected to the base of the transistor, as you can see from this network. This is R dash. Okay, and this R dash is connected
with the base of the transistor. Okay, this is base. Okay, so okay, the working of this RC phase shift oscillator. The working of the RC phase shift oscillator is expressed in the following steps. Number one, a variation in the base current is amplified in collector circuit. जो बेस करंट में जो वेरिएशन आती हैं वो कलेक्टर सर्किट में एम्पलीफाई हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर भी काम करता है. इट इज़ देन फेड बैक थ्रू आरसी नेटवर्क. आरसी नेटवर्क के थ्रू फीडबैक किया जाता है. आरसी नेटवर्क इंट्रोड्यूसेस अनदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 आरसी नेटवर्क्स हैं, तो हर एक 60 डिग्री, टोटल इससे 180 डिग्री फेज शिफ्ट बनता है. Then it is applied to the base in phase with initial change in base current. तो चूंकि दो दफ़ा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है, तो इस वजह से वो जो बेस को जो करंट मिलता है वो दोबारा इन फेज हो जाता है, जैसा कि इनिशियल में होता है. Hence, it is used to sustain cycles of variation in collector current between saturation and cutoff. आपको पता है हमने ट्रांजिस्टर को ना सेचुरेशन रीजन में लेके जाना है और ना कट ऑफ रीजन में लेके जाना है. ये क्यू सेट पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे मिड टर्म में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, यानी सेचुरेशन रीजन में भी नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द सेचुरेशन रीजन. और यहाँ पे जो है वो कट ऑफ रीजन है, ठीक है. तो कट ऑफ रीजन में तो ऑप्टिमम जो है वो इन दोनों के बीच होना चाहिए. सो जो यहाँ पे ऑसिलेटर है, यहाँ इसका फ़ायदा है कि ये कलेक्टर करंट को सेचुरेशन और कट ऑफ के बीच रखता है, यानी आईसी को. ये आईसी क्या वो है ना, आईसी, ठीक है, और वीसीई का ग्राफ होता है. तो आईसी की जो वैल्यू है वो इन बिटवीन सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में हो, ताकि वो जो है यानी प्रॉपरली फंक्शन कर सके. ओके, ये इसका इक्विवेलेंट हाइब्रिड मॉडल है, सही. तो एच एफ ई एच आई ई, सही. ये थ्री उसके वो हैं आर सी, ये 3 आर सी नेटवर्क्स हैं, सही. और आखिर में जो आर डैश लगा हुआ था वो ये है, सही. और यहाँ पे एक करंट सोर्स के थ्रू हम इसको वो करते हैं. 4 मॉडल्स हमने पढ़े थे, जिसमें 2 जो हैं वो करंट सोर्स उस यूज़ होते हैं और 2 उसमें वोल्टेज सोर्स यूज़ होते हैं. हम मीटर में हम पढ़ चुके हैं. तो ये करंट सोर्स का, सही. सो ये जो करंट है वो I1 के बिल्कुल अपोजिट है, सही. अच्छा, सो जो वी नॉट है, ठीक है, वी नॉट वो यहाँ का इन आउटपुट वोल्टेज है. और ये वी नॉट में इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी. ये हुआ करंट. वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ये और ये आर सी इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है. तो ये भी इसके साथ आएगा, ठीक है. वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई, ये आई है, आई. और ये एच एफ ये हाइब्रिड मॉडल की वजह से आया है इसके साथ, ठीक है. तो ये आई और आर, आई इंटू आर. आर जो है वो आर सी है और आई जो है वो ये है. तो वी इक्वल टू ये, तो यहाँ वी नॉट में इसके साथ होते हैं. अच्छा, बीटा हमें पता है कि वी एफ ओवर वी नॉट है, सही. तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नॉट. वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नॉट. अच्छा, और बीटा जो है वो अच्छा, और दूसरा वी एफ हमें हमें ये भी पता है कि वी एफ जो है वो I3R के बराबर है. ये वी एफ जो है I3, ये वाला I3 जो करंट इससे गुजर रहा है वो I3 है. तो मैं यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकता हूँ. तो मैं कह सकता हूँ कि वी एफ इज इक्वल टू I3 इंटू R3, सही. ये इस आर के अक्रॉस है, तो इसको मैं R3 तो खैर नहीं, मैं सिर्फ आर में कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तीनों की रेजिस्टेंस वो है, सेम है.
इसकी इसकी इसलिए इन्होंने R1 R2 R3 नहीं कहा, और कैपेसिटेंस भी तीनों की सेम है, तो तीनों की C और R। ठीक है। सो वी एफ इज इक्वल टू I3 इंटू आर। सही। अच्छा, तो अब ये वी एफ की वैल्यू लें और यहाँ पे पुट कर दें, तो हमें बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू, ये वी एफ के बजाय I3R लिखा डिवाइडेड बाई वी नॉट। और आगे आगे अगले स्टेप में यानी 2-3 पेजेस के बाद ये फिर इसके बजाय हम वी नॉट के बजाय ये भी लिखेंगे, तो ये आप लोगों के जहन में अभी से हो। सही। वी नॉट जो है वो यहाँ पे ओम अप्लाई करें। सो HFE/IB इंटू RC वी नॉट के, तो इसके बजाय फिर हम ये भी लिखेंगे, ये आप लोगों के जहन में हो अभी से। सही। ओके। अब हम इस ऑसिलेटर की जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी और गेन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सही। कैलकुलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ दी ऑसिलेटर। अच्छा, ये सर्किट है। ठीक है। ये असल में इनकम्प्लीट है। अगर आप इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो इसके साथ ये भी है, ये वाला ब्रांच भी है। ठीक है। ये करंट सोर्स वाला है। सो इसके साथ वो भी बना दें। ठीक है। डाउनलोड HFE/IB, और ये रहा इस तरह। ठीक है। सो अब हम केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस लूप में। सही। सो इसके लिए v इज इक्वल टू I माइनस जे एक्स सी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके लिए I1 माइनस आई टू इंटू आर, ये वाला इसके अक्रॉस जो। सर इसमें हम लोग अपनी आसानी के लिए पहले वी नॉट लिख सकते हैं, अगर हम लोग जब सर्किट के ऊपर बना रहे हैं। हाँ हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। और सर फिर आखिर में अगर वैल्यू पुट कर लें। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है सर। तो फिर इसके बजाय आप लोगों ने लिखना होगा वो, मगर असल में हम किसी के साथ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना। हम इसको करंट में वो कर रहे हैं, इन टर्म ऑफ करंट हम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी करंट, यहाँ पे भी करंट, तो यहाँ पे भी अगर आप इसके बजाय वी नॉट लिख दें तो लिख सकते हैं इसके बजाय। अगर वो फिर हम इन टर्म ऑफ करंट कर रहे हैं चूँकि, तो इस वजह से हम वी इक्वल टू आई आर के फॉर्म में लिखेंगे पूरा। सही। यानी ठीक है सर। जिस तरह हम केवीएल में करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये है। ठीक है। ये है। अगर हम इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम स्टार्ट में तो ये लिख लेते हैं वी इन इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। ठीक है। अगर फिर हम इसको पे भी ओम लॉ अप्लाई कर देते हैं, इस पे भी ओम लॉ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इसकी तो वैल्यू होती है। चलो ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको पे यानी करंट इन टर्म ऑफ करंट लिखेंगे। ठीक है। फिर आई आर प्लस आई जे एक्स एल, इस तरह। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह करेंगे। ठीक। ओके। सो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। इस पे ओम लॉ अप्लाई किया तो ये आया जी। ठीक है। अच्छा, इस पे ओम लॉ अप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है। अच्छा, इस पे हम लॉ अप्लाई करेंगे तो आई माइनस आई, चूँकि करंट इसका जो है वो अपोजिट है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। सही। आप देख रहे हैं ये अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड है ये करंट। सो आई माइनस एच एफ ई आई बी। ठीक है। इस करंट से माइनस किया इनटू आर सी। सही। ये वाला आर सी करंट, तो इसके लिए ये होगा। सही? इसमें से दो करंट असल में फ्लो हो रही है। इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ I1 है, तो इसलिए सिर्फ I1 लिखा। इसमें से दो करंट फ्लो हो रही है, एक I1 और एक I2। I1 जो है वो नीचे आ रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, दोनों ऑपोजिट हैं। तो आपको पता है लूप 1 में हमेशा हम I1 माइनस दूसरे करंट लिखेंगे, लूप 2 में I2 माइनस दूसरे करंट लिखेंगे, लूप 3 में I3 माइनस लिखेंगे। इसकी बादशाही होगी। ठीक है ना। तो I1 माइनस I2 हमने यहाँ पे लिखा, दो करंट फ्लो हो रहे थे। इसी तरह यहाँ से भी दो करंट फ्लो हो रही है, एक ये वाला करंट और एक ये वाला, तो दोनों ऑपोजिट हैं।
सो I1 माइनस दिस करंट, ठीक है, इनटू आर सी इज इक्वल टू, ये सारे जो हैं ड्रॉप्स हैं, सोर्स इसमें नहीं है तो इसलिए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, सही। अच्छा, फिर I1 यहाँ पे भी है और I1 यहाँ पे भी है और I1 यहाँ पे भी है, तो इन सबको कॉमन लें, सही। तो I1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया माइनस JXC, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया R, और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया RC, सही। तो ये हुआ I1। अच्छा, फिर आई टू किन किन के साथ है, इसके साथ I2 तो नहीं है, इसके साथ है तो माइनस I2 R हो जाएगा, सही। और ये इज इक्वल, अच्छा ये यहाँ पे माइनस है तो इसको इस साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू HFE IB RC, सही। ओके, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2, लूप 2 की तरफ जाने हैं, सही। लूप 2 में कौन कौन से हैं, 3 वो हैं, एलिमेंट्स हैं, एक ये है R है, और एक C है, और एक दोबारा R है, सही। तो 3, तो इस पे करेंगे। अच्छा, आप देखें, अब यहाँ पे I2 ऊपर जा रहा है, I1 नीचे है, तो अब भी ये अपोजिट है, मगर अब यहाँ पे हम I1 माइनस I2 नहीं लिखेंगे बल्कि I2 माइनस I1 लिखेंगे, सही। तो आपको पता है। सो इसके लिए I2 माइनस I1 इंटू R। अच्छा, और इसके लिए I2 माइनस I3, ठीक है। यहाँ पे I2 माइनस I1, यहाँ पे भी ऑपोजिट है तो I2 माइनस I3, दो करंट इससे फ्लो हो रही हैं, एक I2 भी फ्लो हो रही है और एक I3 भी फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस में से। सो I2 माइनस I3 इंटू R, सही। अच्छा, और ये इससे सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा है और वो है सिर्फ I2, तो I2 इंटू माइनस JXC इज इक्वल टू, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो आसान है, I1 वाले टर्म यहाँ पे लिखें, I2 वाले टर्म्स यहाँ पे लिखें, I3 वाले टर्म यहाँ पे लिखें, ठीक है। I1 सिर्फ इसके साथ है, माइनस भी है तो माइनस R हो गया, और इसके साथ है तो R प्लस, हाँ ये देखिए R है तो 2R हो गया, और माइनस JXC, सही। इक्वेशन नंबर 2। अब लूप नंबर 3, याद रहे कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर फाइंड करना है, सही। अच्छा, अब लूप नंबर 3 में भी वही किस्सा है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, दो वो हैं, एक दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। ये आखिरी जो रेजिस्टेंस है अगर आप लोग देखें इसमें, तो इसमें सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा है, I3। सो ये वाला जो है, ये वाला हो गया ये, ठीक है, और ये फिर सी वाला ये, और R के लिए ये, ठीक है। तो इसमें से दो करंट फ्लो हो रही हैं तो आप I3 माइनस I2 लिखेंगे क्योंकि लूप नंबर 3 है, और माइनस JXC, ठीक है, इंटू I3, और प्लस R इंटू I3, सही। तो सिर्फ I3 करंट इससे फ्लो हो रहा है। अच्छा, यहाँ से अब हम जो है वो वैल्यूज़ निकालेंगे और ऊपर पुट करते जाएंगे, सही। अच्छा, तो I1 इसमें नहीं है, देखिए इसमें ये I2 I3 है, I1 इसमें नहीं है, तो I1 का पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस दिस प्लस ये I2 वाला पोर्शन, ये I3 वाला पोर्शन। इक्वेशन नंबर 3 ये है। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसी इक्वेशन नंबर 3 से हम लेंगे RI2 इज इक्वल टू 2R माइनस JXC इंटू I3। ये देखिए, ये वाला, ये माइनस RI2 है तो इसको इस साइड पर ले जाएं तो R प्लस RI2 इज इक्वल टू 2R माइनस JXC इंटू I3 होगा, ये, सही। अब यहाँ से I2 फाइंड करें तो R यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, जब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बन जाएगा, 2 माइनस, और यहाँ पे वो R आ जाएगा। अच्छा, अब XC भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और R भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो फ़िलहाल अपनी कैलकुलेशन को आसानी के लिए हम इसको अल्फ़ा कंसिडर कर लेंगे, फिर बाद में हम इस अल्फ़ा को, देखिए यहाँ पे जब अल्फ़ा होगा तो फिर दोबारा हम इसको XC माइनस XC डिवाइड बाई R से रिप्लेस कर देंगे, मगर फॉर द टाइम बिंग आप इसको फ़िलहाल अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए XC और R को कोई कांस्टेंट वैल्यू अल्फ़ा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू अल्फ़ा मैं लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो I2 इज इक्वल टू 2
माइनस जे अल्फ़ा इंटू I3, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सही। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चले जाएं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा था? ये है इक्वेशन नंबर 2, माइनस I1R, ये लूप नंबर 2 से जो आया था, ठीक है, माइनस I1R प्लस 2R माइनस जे एक्सी इंटू I2 माइनस R I3। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे I2 फाइंड कर लिया है, ये है। सही, ये I2 यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो इस I2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा। तो अच्छा, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, हाँ यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, ये है माइनस I1R1 प्लस ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको इस साइड पे ले आए, इधर ले आए, ये माइनस है, ठीक है। तो जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो I1R इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आ गया, इज इक्वल टू दिस होल थिंग। अच्छा, अब R फिर डिवाइड कर दें, यहाँ से भी R डिवाइड करेंगे तो R ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे R डिवाइड करेंगे तो R ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, वो ये है। सही, और यहाँ से भी R ख़त्म हो जाएगा। सही, तो एक्स सी ओवर आर को हमने यहाँ पे क्या लिखा था? अल्फ़ा लिखा था ना। अब यहाँ पे भी हम एक्स सी ओवर आर के बजाय अल्फ़ा लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? I1 इज इक्वल टू 2 माइनस जे अल्फ़ा इंटू I2 माइनस I3। अच्छा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 2 माइनस जे अल्फ़ा, ठीक है, I2 के बजाय अब मैं ये वाली वैल्यू लिखूँगा, ठीक। तो इसके बजाय लिखूँगा तो I2 के बजाय क्या लिखूँगा मैं? ये दिस होल थिंग, ये I2 है, 2 माइनस जे अल्फ़ा इंटू I3, और माइनस I3 ये अपना वाला होगा। सही, समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर, समझ आ रही है इसकी। ओके। अच्छा, सो अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट किया। सही है, अब जो है मैं क्या करूँगा कि इसको सॉल्व करूँगा, ये सॉल्व करूँ, इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया, और अगेन जे स्क्वायर से माइनस आता है तो वो माइनस आ जाएगा, जे ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस 2 अल्फ़ा जे अल्फ़ा होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी माइनस 2 जे अल्फ़ा है, तो इससे माइनस 4 जे अल्फ़ा आ गया, ठीक है, इंटू I3, और ये माइनस I3 अपनी जगह पर। सही, तो I3 वो ले लें आप, कॉमन ले लें। सही, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। आप 1 इस 4 के साथ, चूँकि यहाँ पे -1 होगा, -1 प्लस 4 इससे +3 बन जाएगा। असल में मैंने I3 कॉमन लिया। सही, सो 3 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस J4 अल्फ़ा। इसमें देखिए इमेजिनरी टर्म्स भी हैं और रियल टर्म्स भी हैं। सही। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये था, अगर आप ऊपर चलें जाए, अगर आप लोगों को याद हो तो इक्वेशन नंबर 1 ये बनता था, HFE इज इक्वल टू R प्लस आर सी माइनस ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर वही काम करते हैं हम, R से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको भी R से डिवाइड किया, 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 और इसको भी R से डिवाइड किया। तो इसको R से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी, इसको R से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे करेंगे तो ये आ गया जी, और इससे करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आर सी और आर एक और कांस्टेंट का रेशो है, तो इसको भी चलो हम के से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए, फिर बाद में हम इसके को दोबारा इसी से रिप्लेस कर देंगे। सही। अच्छा, और एक्स सी ओवर आर को तो हम पहले ही अल्फ़ा कह चुके हैं, तो वो एक्स ओवर आर के बजाय अल्फ़ा लिख लेंगे, और आर सी ओवर आर इन दोनों के बजाय हम के लिख लेंगे। अच्छा, तो इक्वेशन किस तरह बन जाएगा? HFE के, इसके बजाय के लिख लिया, के इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे फिर के माइनस जे, और इसके बजाय अल्फ़ा लिख लिया, I1 माइनस I2। अच्छा जी, अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। सही, तो इक्वेशन नंबर 4 से I2 की वैल्यू ले लें,
और इक्वेशन नंबर 4 से किधर गया, इक्वेशन नंबर 4 से आई टू की वैल्यू ले लें, सही ये। और इक्वेशन नंबर 5 से कौन सी किसकी वैल्यू ले लें, I1 I1 की वैल्यू, यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 से I1 की वैल्यू, सो और इसमें पुट करते जाएं, इस ये वाली जो वैल्यू आ गई इसमें, तो एच एफ ई आई बी के इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस जे अल्फ़ा, ये अपनी जगह पे। अब ये सारा हो गया I1, ठीक है। ये रहा, ये इक्वेशन नंबर, ये यहाँ से I1 माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस जे अल्फ़ा I3। अच्छा ये एक मिनट, I1 जो है वो ये है, ये है I1, सही, जो यहाँ पे है ये वाला, ठीक है, I3 तक, और माइनस I2, तो ये I2 ये है, सही। ओके, तो अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, मगर यहाँ पे ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करें, ठीक है। 3 तो 3 के आ जाएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा, वो सारा कुछ इस तरह देखेंगे। जो जो कैंसिल होता है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, सही। सो वी विल गेट दिस, ठीक है। इसमें हमने इस तरह किया है कि रियल टर्म्स को एक साइड पे कर दिया है, ये रियल टर्म्स है, इसमें जे नहीं है, और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं वो इस साइड पे कर दिए, जिनके साथ जे जे बनता था वो इस साइड पे कर दिए, क्योंकि हम अब रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो ये रियल है, ठीक है ना। तो रियल टर्म लेफ्ट साइड पे भी है इज इक्वल टू राइट साइड पे भी है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और इमेजिनरी लेफ्ट साइड राइट साइड पे है मगर लेफ्ट साइड पे नहीं है, सही। तो आगे जाके हम कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, तो मैंने आपको अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई इमेजिनरी नहीं है तो वो तो ज़ीरो हो गया, और राइट हैंड साइड पे ये इमेजिनरी है, सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि आइदर, आप लोगों ने ये मैट्रिक में भी सारा पढ़ा होगा, I3 ये जो पूरा टर्म है इज इक्वल टू 0 है, तो ये कह रहे हैं कि आइदर I3 इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि करंट चूँकि फ्लो होगा तो करंट 0 नहीं हो सकता, एज I3 नेवर इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 0, सही। या अगर इस बात की आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप I3 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे, यहाँ पे भी I3 डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी I3 डिवाइड करते हैं, सही। तो 0/I3 जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये I3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस, ये सारा कुछ इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर इसमें भी एक और रूम है, अल्फ़ा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो अल्फ़ा कॉमन ले लें, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, और ये सारा यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, सही। सो फिर अगेन अल्फ़ा को डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 + 4k इज इक्वल टू 0, सही। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, अब देखें जो अल्फ़ा, जो k के बजाय हमने वैल्यू लिखी थी और जो अल्फ़ा के बजाय हमने वैल्यू लिखी थी, वो दोबारा अब जो है वो इसको रिप्लेस कर दें। वो तो हमने सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए किया था, मगर आप इसको रिप्लेस कर दें, सो वी विल गेट अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे ले आएँ ताकि ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 4k, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड के, ठीक है। अल्फ़ा के बजाय XC/R और के बजाय RC/R, सही है, तो वो दोबारा लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, सो वी विल गेट XC/R इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और XC की बजाय आप ये लिख लें 1/2πfc, XC जो है किस चीज़ के बराबर है, 1/2πfc। असल में हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, तो जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी के लिए
यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का होना ज़रूरी है। तो 1/2 पाई एफ सी, ये एक्स सी सी आया, और 1/r तो ऑलरेडी पहले है, तो ये आ जाएगा। तो 1/2 पाई एफ सी आर इज इक्वल टू दिस थिंग। अब मैंने एफ फाइंड करना है, तो इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल लेने, तो इसको भी उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेने से। सो 2 पाई एफ सी आर इज इक्वल टू 1/, दिस होल थिंग हो जाएगा। अब 2 पाई सी और आर, इसको डिवाइड करें बोथ साइड पे, सो वी विल गेट 1/2 पाई आर सी, ताकि ये एफ अकेला रह जाए, सही। बाकी टर्म्स को इस साइड पे ले आए, तो 1/2 पाई आर सी और 1/, ये दिस होल थिंग। तो ये आ गया हमारे पास। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है, तो आपने जो रेजिस्टेंस आर सी, जो आर सी आप लोगों ने यूज़ की है, आर सी नेटवर्क, उसका जो आर है वो यहाँ पे पुट कर लें, उसका जो सी है वो यहाँ पे पुट कर लें, और आर सी, ठीक है, जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो आप लिख लें, और ये आर अगेन वही आर सी वाला आर आ गया, सही। मगर इसमें ये नुकसान है, अगर ये 3 अलग अलग आर होते हैं, यानी आर सी हमने तो अभी तीनों सेम लिए हैं, अगर ये डिफरेंट होते हैं तो फिर इसकी कैलकुलेशन जो है वो किसी और तरीके से होती, ठीक है। तो फिर इसका ये फार्मूला ना आता है। अब तो ये तीनों सेम है, तो इस वजह से हम यहाँ पे वो पुट कर सकते हैं, सही। अच्छा, अब हम रियल पार्ट्स को आपस में वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, सही। वो तो इमेजिनरी हमने कंपेयर किए थे, अब रियल पार्ट्स हम कंपेयर करेंगे। तो जो रियल पार्ट्स हैं, नाउ इक्वेटिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो देखिए रियल साइड पे ये वैल्यू आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि रियल लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे और ये वाला राइट हैंड साइड पे, सही। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ के, जो के की वैल्यू थी तो वो दोबारा आप लिख लें, सही। ये आई बी आर सी और आर, यहाँ पे के के बजाय ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, सही। इज इक्वल टू 3, फिलहाल इस साइड पे नहीं की, 3 के प्लस ये उस साइड पे कर लिया, सही। ओके, सो एच एफ ई आई बी आर सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये जो आर है इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले देखिए, इस यहाँ पे आर नहीं है, ये वाला आर यहाँ से आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर, और आई थ्री को इस साइड पे कर लें, आई थ्री इस साइड पे हो जाएगा, आर ऊपर हो जाएगा, तो आर 3 के+1, ये सारा कुछ, ठीक है। एज फाउंड अर्लियर, अगर इससे पहले आप देखें तो अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 6+4 के आया था। ये देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 6+4 के, तो अल्फा स्क्वेयर 6+4 के, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर के बजाय मैं ये लिख सकता हूँ 6+4 के, ताकि इन टर्म ऑफ के आ जाए और क्वाड्रेटिक वो फार्मूला सही बन जाए, ठीक है। तो आर, देखिए आर 3 के+1, 3 के+1, ठीक है, माइनस के स्क्वेयर, ठीक है। अल्फा अल्फा किस चीज़ के बराबर है, 6+4 के। तो अल्फा स्क्वेयर के बजाय 6+4 के लिखा मैंने, और ये जो है अपनी जगह पे, सही। ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सही। अब के वाले सॉल्व कर लें, स्क्वेयर स्क्वेयर वाले सॉल्व कर लें, सारा कुछ, सो यू विल गेट दिस। अच्छा, अब माइनस, अच्छा, आर 4 के स्क्वेयर ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, वो यहाँ से कॉमन लिया ताकि ये प्लस हो जाए। 4 के स्क्वेयर प्लस 23 के, ठीक है, 3 के है और ये -20 के है, सही। सो और ये -6 के है, सही। तो इससे आ गया -23 के, मगर -2 के हमने कॉमन लिया है तो +23 के हो जाए, ठीक। और +29, ये देखिए -30 +1
-29 माइनस क्योंकि कॉमन लिया है तो +29 हो जाएगा। अच्छा, बीटा हमने बिल्कुल स्टार्ट के पहले पेज में मैंने आपको बताया था बीटा इज इक्वल टू I3R ओवर V0। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ये याद रखें, फिर हम बाद में यूज़ करेंगे V0 के बजाय जो है वो ये हम लिख सकते HFE/IBRC सही, और ये अपनी जगह पे। सो HFE/IBRC, ठीक है, ये वाला HFE/IBRC ओवर R3 I3 इंटू R। ये R जो है वो यहाँ से ये वाला R जो है, ये जो यहाँ R है, इसको डिवाइड करें बोथ साइड पे, सो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये पूरा ये आर हमने इसलिए इस साइड पे क्योंकि ये आर जो है हमारी ज़रूरत है वो आर इसकी, क्योंकि ये पूरा बीटा के बराबर है। बीटा किस चीज़ के बराबर है? I3R ओवर HFE/IBRC, ये बीटा के बराबर है। तो अगर आप HFE और IB के बजाय V0 लिखते, इसके बजाय V0 लिखते, तो अब यहाँ पे जो है आप फिर वो बीटा नहीं लिख सकते थे, ठीक है, तो इस वजह से इसको एज इट इज़ रहने दिया था हमने। सो अब बीटा इसके बराबर है, तो चूँकि हमारे पास जो टर्म आया है इसमें HFE और ये वो सारा कुछ तो उल्टा है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में है, इसलिए ये 1 ओवर बीटा के बराबर है। सो 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू माइनस ये सारा कुछ, ठीक है, ये -1 ओवर बीटा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज बैक, एक के के बजाय RC ओवर R लिखते हैं, के के बजाय RC ओवर R लिखते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ यूँ होगी 1 और बीटा इज इक्वल टू दिस -4 के बजाय R ओवर R लिखा, ये सारा कुछ। सो 1 और बीटा इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये हुआ 1 और बीटा की वैल्यू सही। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फिर हम इसके बाद जो है वो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर फॉर FET एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे सही। तो अब थोड़ा हम ब्रेक ले लेंगे, ये मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और फिर जो है उसके बाद हम 10 मिनट के बाद फिर ऑनलाइन हो जाएंगे, तो वो जो रिमेनिंग FET का है वो हम उसके बाद कर लेंगे सही। एनी क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी तक क्लियर है। ओके सही। ये वाला आप देख लें, तो ये दूसरा FET वाला वो बिल्कुल इसी तरह इसकी कैलकुलेशन है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी हम फाइंड करेंगे, गेन भी फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह ही है सही है। ठीक है सर। सर इसका एक दफा बस एक दफा बंदा प्रैक्टिस करे तो सही समझ आ जाएगी सर, ये भी क्लियर हो गया। बिल्कुल रिटन प्रैक्टिस कर लें बस। स्टार्ट में अगर आप देखें तो KVL हमने किया है, ठीक है, उसके बाद जो है हम एक जो आखिरी जो वो था इक्वेशन I3, उसको हमने सॉल्व करके तो वो I2 में पुट किया, फिर वो इसी को सॉल्व करके तो I1 में पुट किया, सारा कंबाइन करके फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की, अल्फ़ा और के को इंट्रोड्यूस किया, फिर रियल को रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया। तो जब इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया तो उससे हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई, और जब रियल को रियल के साथ वो किया तो हमारे पास ये बीटा की वैल्यू आ गई सही। तो बहुत ही आसान हुआ है, सही है। जी सर।